हेलो फ्रेंड्स, तो ये डिबेट कंपटीशन का है सेकंड पार्ट, यानी जूनियर विंग का ये कंपटीशन जो कि फॉर और अगेंस्ट हिंदी और इंग्लिश के बच्चे जो हमारे सब असेंबल हैं यहाँ पर। तो ये सारे वो बच्चे जो फॉर अगेंस्ट चारों हाउसेस के इकट्ठा हैं, अपने अपने बातों को रखेंगे और हम भी इनके बातों को सुनेंगे और समझेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं, अपने बारे में क्या बताना चाहते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं, इनके विचारों को जानते हैं। Views in favor on this topic: artificial intelligence is a boon or a ban. Artificial intelligence stands for AI. It is a branch of computer science and enables machines to mimic human behavior. AI is a machine simulation of human intelligence, and it could solve major real-world challenges. Artificial intelligence is not a threat to humanity. It can be a great boon. Artificial intelligence is a boon or a bane depends on how we choose to use it. If we use it responsibly, AI can be a powerful tool for solving many problems. I believe AI is going to change the world more than anything in the history of humanity. Thank you and have a nice day. Very good morning to you all. It is a proud moment for me that I am going to represent my topic in front of you in against of AI. AI is also known as artificial intelligence. It is the most powerful software existing today, but it has many negative impacts such like job displacements, fraud, etc. In today's life, we are not able to do any work without the AI, with the ChatGPT, like and Google Meet. From that part. Not a substitute for human intelligence. It is a tool to amplify human creativity and ingenuity. A very safe good morning to one and all present here. Respected jury, respected principal ma'am, teachers, and all my dear friends. Today I am Zara of class 8 from Unity House. I would like to light my views in the favor of the motion artificial intelligence. In a world where rapid advancement shape our daily lives, AI stands at the forefront, revolutionizing how we work, live, and solve problems. From transforming healthcare with life-saving diagnostic tools to enhancing productivity across industries, AI's positive impact is profound and far-reaching. Through comes with a cost, but the artificial intelligence, the cost might be our humanity itself. Good morning, respected principal ma'am, jury members, teachers, and everyone presented here. Today, I am Krishna Varimama from class 7B from Unity House, stand before you to argue that the artificial intelligence, while undoubtedly impressive, is a bane to society. When its impact is critically viewed. Imagine a world where machines replace humans, privacy no longer exists, and decisions about our life are made by cold and feeling algorithms. This is not a dystopian movie, this is reality. AI is taking us towards artificial intelligence, or AI has prevailed nearly every aspect of artificial intelligence. In the following, I'll be explaining the uses and the benefits of the AI. In the healthcare system, AI has helped by providing patient care, disease diagnosis, treatment, surgery, etc. It has also helped in many researches related to the medical field. Boards are used to help doctors, patients, and other healthcare persons for performing critical tasks smoothly. Now, I want to talk about the time management. For example, collection of data, analyzing it, and giving an expected result. All these tasks can be done by artificial intelligence. And all my dear friends, first of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. Myself, Zubir Rahman, and I study in class 8B. I have given a chance to speak on a point: AI should be banned. As you know, AI stands for artificial intelligence, and this is going to use in every aspect of human life. In human life, lots of products using AI have also made their way onto the marketplace. But despite the excitement surrounding AI, artificial intelligence has some very vocal critics, and many people have expressed their concerns over the use of. Very good morning to all of you, respected principal, in charge, teachers, and all my dear friends. Myself, Samsha Farki of class 6A. I am here today to argue in the favor of the topic: artificial intelligence is a boon. In today's world, AI isn't just a technical achievement, but a revolution that has a potential to benefit society and help to solve some of the world's biggest challenges. First of all, let me explain you what is artificial intelligence. It is the ability of digital computer or computer-controlled robot to perform tasks commonly associated with intelligent beings like principal, dignified in charge, esteemed teachers, my fellow opponents, and all my dear friends. Myself, Murtaza Hussain of class 8B. Today I stand before you to argue that artificial intelligence is definitely a bane. While my fellow opponents view AI as a miraculous technology, the reality is that it comes with a significant and potentially catastrophic consequences. Let me start with a warning from Stephen Hawking, who once said the development of artificial intelligence could spell the end of the human race. He was right to be concerned, as AI has the potential to operate beyond human control. AI poses a substantial threat to human employment, unlike previous. कुछ ईश्वर तक गुरु ने अपना ज्ञान मार्ग दिखलाया। ईश्वर जब जब मानव रूप में
निज शब्दों में गाया। मैं देवाशीष जो कि कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ, सभा में उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया जी, समस्त शिक्षकगण एवं नीर विवेकी सभी जनों को प्रणाम करता हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जैसा कि यह दोहा संत कबीरदास जी का एक सुप्रसिद्ध दोहा है, जिसके अंतर्गत उन्होंने गुरु तथा गोविंद दोनों की महिमाओं की प्रधानाचार्य महोदया और मेरे समस्त शिक्षकगण और मेरे प्रिय मित्रों, मैं रुशान वसीम, सुप्रभात। मैं रुशान वसीम कक्षा 6वीं का छात्र प्रस्तुत हूँ आप सभी के सामने विपक्ष में अपने विचारों के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े खाके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। यह पंक्तियां कबीरदास जी के द्वारा दी गई है, जिसमें उन्होंने गुरु की महिमा को बढ़ा बताया। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस सृष्टि को बनाया किसने? आखिर कौन है सृष्टि का रचनाकार? जी हाँ, ईश्वर। ईश्वर ही है जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है, तो इसका मतलब गुरु को भी उन्होंने नहीं बनाया है। तो गुरु किस प्रकार बड़े हो सकते हैं? सभी सम्मान्य शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, मैं मोहम्मद मुदशम कक्षा 8 का छात्र आज मैं यहाँ आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए के पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। प्रस्तुत दोहा सुप्रसिद्ध संत कवि कबीरदास जी द्वारा विख्यात दोहा है। इस दोहा में कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु और गोविंद अर्थात ईश्वर में गुरु अधिक मान है, और यह सत्य भी है कि गुरु ही हमें ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग बताते हैं, वे ही ज्ञान प्रदान करते हैं। एक साधक बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, इस विषय में विपक्ष से अपने तर्क प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रिय मित्रों, उक्त सुप्रसिद्ध दोहा श्री संत कबीरदास जी द्वारा रचित है। इसमें बताया गया है कि गुरु गोविंद अर्थात से अधिक बड़े हैं, महान हैं, परंतु मेरी बुद्धि विवेक में इस विषय में कुछ संशय है, क्योंकि हमें सदैव यही बताया गया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, वह सभी के अंतर्मन में विराजमान है। यह सत्य है, जिसे हम या आप कोई नहीं झुठला सकते। मित्रों, हमें ईश्वर के अस्तित्व को मानना चाहिए। जो कुछ भी होता है उसके पीछे ईश्वर की इच्छा अवश्य होती है। ईश्वर के अस्तित्व और महानता पर कक्षा 6 का छात्र हूँ। आज मैं यहाँ वाद विवाद पंक्तियों में पक्ष के विषय में बोलने प्रस्तुत हुआ हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये सुप्रसिद्ध दोहा संत कवि कबीरदास द्वारा रचित है। कवि कबीरदास वह कवि थे जो धर्म आचरण और भाषा से परे थे। वह शिष्य को गुरु का मान करना सिखाते थे। 15वीं सदी के प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी की भाषा सदुकड़ी एवं पंचमील खिचड़ी थी। ये निगुण धारा के कवि थे। अगर हम प्रस्तुत दोहों के बारे में बात करें तो दोहे का अर्थ होता है गुरु और ईश्वर दोनों एक साथ हो, तो हमें पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए और फिर परमात्मा को। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, सुप्रभात। मेरा नाम मोहम्मद अयाज है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। आज यहाँ विभाजित वाद विवाद प्रतियोगिता में दिए गए विषय गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए के विपक्ष में अपनी भागीदारी प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। इसके विपक्ष में सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी हमारे मित्र ने कहा, यदि गुरु और ईश्वर दोनों हमारे सामने हों तो सबसे पहले हमें गुरु के पैर छूने चाहिए। परंतु मैं यह कहना चाहूँगा, इस दुनिया में जो हमें लाता है वह हमारे माता पिता हैं, जिन्हें हमारे मित्र ने बिल्कुल ही भुला दिया है। अतः हम अपनी जननी को कैसे भूल सकते हैं, जिनसे हमारा गुरु का मोल न कीजिए, गुरु तो है अनमोल, ज्ञान ग्रहण कर लीजिए, मन के चक्षु खोल। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, इंचार्ज मैम, शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों। मैं अर्षद कक्षा 7 का विद्यार्थी आज आपके समक्ष वाद विवाद प्रतियोगिता के मुख्य विषय के पक्ष में अपने विचार व्यक्त करने को उत्सुक हूँ। मेरा आज का विषय है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यह दोहा हिंदी साहित्य के महान कवि कबीरदास जी का है, जिसमें उन्होंने गुरु की महत्ता, उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार किया है। केवल कबीरदास जी ने ही नहीं होती है और अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब इस पृथ्वी पर ईश्वर जन्म लेता है। सुप्रभात सभी उपस्थित सम्माननीय जनों और मेरे प्रिय मित्रगणों। मैं श्रेयस दीक्षित कक्षा 6 का विद्यार्थी आज आपके समक्ष दिए गए विषय के विपक्ष में अपना मत रखने जा रहा हूँ। जैसा कि मेरे साथी ने अभी अभी आपके समक्ष गुरु की श्रेष्ठता सिद्ध की और ये भी कहा कि ईश्वर की असीम कृपा गुरु के मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं है, फिर हमें बचपन से ये क्यों सिखाया जाता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, ईश्वर अनंत है, अजन्मा है और अनादि है। ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति, भावना और प्रेम ही मानव को उसके उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जाती है। अगर ऊपर तो फ्रेंड्स, ये है हमारे विनर इंग्लिश और हिंदी डिबेट के फॉर और अगेंस्ट में, यानी कि 4 विनर, फर्स्ट सेकंड थर्ड और एक कंसोलेशन। उसके बाद हिंदी डिबेट्स के भी इसी तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड और कंसोलेशन। तो चारों मिलकर के, यानी हिंदी के 4 और इंग्लिश के 4 मिलकर के हुए 8 16 बच्चे, उनको गिफ्ट्स मिले और सभी पा करके बहुत खुश हुए। और आपके जो भी आपने इनके विचार सुने, आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर ब्लॉग पसंद आया हो, डिबेट पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।